Hello, everyone. I'm Dr. Reshma Hingorani. You're watching Dr. KK's Med Talks Sunday with Dr. Reshma non-stop show 390th episode. We are sorry for a slight delay because of some technical issues. Let's have the headlines of the day. Finally, some good news. Johnson & Johnson's single-dose COVID-19 vaccine gets approval for emergency use in India. Now we have 5 vaccines with emergency use authorization in India. The COVID 19 vaccine administration is rapidly increasing in the country every month, with a total of 13.45 crore doses administered in July, which also saw a remarkable daily average of 43.41 lakh doses. The cumulative vaccine doses administered in the country has crossed the 50 crore mark. India reported over 39,000 new COVID cases in the past 24 hours, slightly higher than yesterday, taking the total infections to over 3.19 crores. 491 deaths were reported in the last 24 hours. Public Health England (PHE) experts have warned that there are early signs that people who have been inoculated may be able to transmit the Delta strain as easily as those who have not received the vaccine. The highly infectious Delta variant in India has triggered a rise in the R value to more than 1. At present, as many as 10 states in the country have an R value higher than 1.01, the national average. Now, let's get on to the topic of the day. Weight and waste management. To discuss more on this topic, we have with us today Miss Ishi Khosla. Hello, Good. Ishi. Well, Miss Ishi Khosla is a practicing clinical nutritionist, columnist, author, and an entrepreneur and researcher. She's actively involved in clinical practice at the Center for Dietary Counseling in Delhi, where she deals with a wide range of nutrition related issues like obesity, diabetes, heart diseases, food allergies, etc. She's also the founder of the Celiac Society of India and Whole Foods, the first of its kind health food company in India. She also founded a unique nutrition app called the weightmonitor.com. She has been felicitated by the President of India for her work in the field of nutrition. We are sorry to keep you waiting, Miss Ishi. Welcome to the show. thank you very much. And it's a privilege to be here. Of course, we feel the absence of Dr. K.K. Agarwal, but in his memory, this could be the best tribute that we could do. And I think may his legacy just continue. Yes. He started so many things which need to be completed, and we're so happy and proud to be a part of this. So thank you for having me. राइट सो इसी हिंदी में हमारे सुनने वाले कहते कि बात करो तो हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे और ये तुम्हारी कमर है या कमरा एक वक्त था कि ऐसी बातें सिर्फ जोक्स में सुनते थे मगर अब ये क्लियर है कि अगर पॉन्च या वेस्ट का साइज बड़ा है तो उसका सीधा नाता हमारी वेलनेस से है सेंट्रल ओबेसिटी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है तो चलिए बात शुरू करते हैं बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जो शब्द काफी इस्तेमाल होता है न्यूट्रिशन के सिलसिले में तो हाउ इज इट कैलकुलेटेड हम इंडियंस के लिए आइडियल क्या है उससे कैसे जाने कि क्या हम ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं जी डॉक्टर रेशमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम डिफाइन कैसे करते हैं मोटापा। तो इसकी यार्डस्टिक्स पहले तो होती थी, जैसे हाइट वेट हो गया और स्टैंडर्ड्स होते थे, लेकिन खाली वजन और हाइट वेट से कुछ बात नहीं बन रही थी। तो एक बहुत अच्छा बीएमआई का एक रेशो आया व्हिच वाज यूनिवर्सल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो उसमें इट इज अ रेशो बिटवीन द वेट इन केजीज एंड द हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये रेशो बहुत मतलब इट वाज कोरिलेटिंग वेरी वेल विद वेलनेस एंड डिजीज एंड अकॉर्डिंग टू द WHO it internationally the ideal was less than 25. That should be the goal for anybody.
But in India, because we have a propensity towards metabolic disorders like obesity, diabetes, heart disease, etc., तो ये स्टैंडर्ड एशियंस के लिए थोड़ा सा टाइटर कर दिया गया. सो फॉर इंडियंस इट इज शुड बी लेस देन 23. 23. So, yes, less than 23. And yet, this alone was not giving us a complete control over the metabolic risk factors. So, the issue of waist measurement remained always as important. पहले waist and height की ratio होती थी, लेकिन now we just use a simple waist measurement, which is around the maximum on your abdomen, and there is a place where you measure it just below the navel. So that is the waist measurement. So BMI is a kg per meter square, and the waist measurement is in centimeters. And again, internationally and for Asians, it is a different, because like I said, because we have a genetic predisposition Right. towards the conditions. So for males, the maximum on the belly should not be more than 90 centimeters, and for women in Asia it should be less than 80 centimeters, and for the rest of the world it is 95 and 85 respectively. हाँ, हाँ, तो इसमें एक बात हम लोग बड़ा ध्यान रखें कि हम लोग बहुत चीटिंग कर जाते हैं कमर को नापने में। बहुत बार अपना पेट को बहुत अंदर खींच के और कम से कम लेने की कोशिश करते हैं। सो वी शुड बी ट्रूथफुल जब शीशे के सामने अपने सेहत के लिए करना है, तो मेहरबानी करके फुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, खींचने की भी ज़रूरत नहीं है अंदर। जो आपका नॉर्मल वेस्ट साइज़ है, उसी को नापें। तो आपने जैसे बताया कि ये जो थोड़ा तो हमारा जेनेटिक है, लेकिन वेस्ट जो है वो हमारी अच्छी चीज़ें अपना रहा है और हम लगता है कि अपना रहन-सहन, खान-पान जो है विदेशियों जैसा बना रहे हैं। तो क्या ये भी कुछ वजह हो सकती है कि इंडियंस में ज़्यादा ओबेसिटी अब देखने को मिलती है? एक वही मेन वजह है. हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन जीन्स तो मिलियंस ऑफ इयर्स में नहीं बदलती. So, what has happened in the last 100 years? One has to see that genes 100 साल में नहीं बदली, लेकिन बीमारियों का तो घर मतलब एपिडेमिक बन गया है, पैंडेमिक ही बन गया है किस्म से. और कोई भी बीमारी काबू नहीं आ रही, चाहे हम दोनों स्पेक्ट्रम देखें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को देखें और मेल न्यूट्रिशन को देखें. तो ना मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एंड जनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, वो भी काबू नहीं आ रहा. और दूसरी तरफ जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, चाहे वो मोटापा हो या डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो, ऑटो इम्यूनिटी हो, कुछ भी तो काबू नहीं आ रहा. तो certainly the genes are important, but they are not deterministic. They are not, and they are not the reason why this is to be explained with genes. Certainly, westernized lifestyles and I think urbanization has made a huge impact. And मेरे को जो लगता है एज अ प्रैक्टिशनर कि जो खाने में बदलाव आए हैं, जो पहले खाना होता था और खाना जैसे एग्रीकल्चर से देखें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बदली हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है फूड की, और हमारी जो पूरी फूड की जो डेफिनेशन है वो ही बदल गई है. जो पहले दाल रोटी सब्जी सिंपल होता था, शुगर होती ही नहीं थी, जैगरी होता था, स्नैक्स होते ही बहुत कम थे. तो ये सब अब एक नया एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एनवायरनमेंट में इट हैज प्लेड अ ह्यूज रोल. And whether we look at fats, the changes in fats, whether we look at, like I said, sugars, carbohydrates, refining, and not having fresh food, processed food, तो ये जो है ये सबसे प्रोफाउंड चेंजेस हैं. और लैक ऑफ एक्टिविटी, इनएडिक्वेट मूवमेंट, मतलब जो पहले होती थी, एक वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. और दूसरा जो है हम ब्लेम करते हैं स्ट्रेस को, चाहे हमें भले ही इतना ज़रूरी नहीं है. आई डोंट थिंक द एनवायरनमेंट इज सो स्ट्रेसफुल, बट वी रिमेन मोर स्ट्रेस देन व्हाट वी शुड बी. So that all of these contribute negatively, and I think we are seeing the results, which is why we are talking today. और जो आपने कहा कि एक रईस देशों की बीमारी माने जाती थी चाइल्डहुड ओबेसिटी, अब तो इंडिया में आप भी बहुत देख रही होंगी, बच्चों में मोटापा?
बहुत डिस्टर्बिंग है डॉक्टर रेशमा, बहुत डिस्टर्बिंग है। हम अभी वी आर इन राजस्थान, in a place called Udaipur, and the guests which I'm seeing, I the youngsters, बड़े 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 तो हैं ही जो हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे स्पोर्ट्स खेल भी रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, लेकिन हाल इतना बुरा है कि मैं सोचती हूँ कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इतना, जो इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इतनी अर्ली जो इन लोगों को मोटापा आ रहा है, इनकी ऑब्वियस साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखते हैं, और ये आगे इनका क्या होगा, इट इज़ रियली अ क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली क्वेश्चन मार्क तो है ही, लेकिन प्रोजेक्शंस जो ये कह रही हैं, according to a Yale public health expert, the children today in this generation are going to have a shorter lifespan compared to their parents. And this is something which has never happened in the history of mankind. Every generation actually has outlived its previous generation. And this is in spite of our healthcare system and the medical systems becoming so much more advanced and so much better. So yes, these are very disturbing, and जो रईस देश हैं या वेस्टर्नाइज देश हैं, उनका जो मोटापे का चाइल्डहुड ओबेसिटी का रेट है, हमारा जो इंडिया का रेट है, वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो ये तो आपकी बात से मैं मेरे ख्याल से सब पेरेंट्स जो इंडिया में खास करके बहुत लोग अपने बच्चों की वेलबींग के लिए व्रत रखते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो उससे बेहतर है कि जो हम आज बातें करेंगे सेहत को ले करके, उसको इम्प्लीमेंट करने में वक्त लगाएं, तो बच्चों की जिंदगी जो है वो लंबी अच्छी तरीके से प्रॉपर साइंटिफिक तरीका हम लोग अपनाएं। आई थिंक दैट विल बी बेटर, एंड विच ऑल्सो टेक्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो फैंसी डाइट्स के पीछे सब भागते रहते हैं कि मैं कीटो खा रही हूँ, मैं एटकिंस खा रहा हूँ, तो आपके एक्सपीरियंस में बेस्ट तरीका क्या है वेट कंट्रोल करने का? देखो, वेट जब तक इस मैं हमेशा मानती हूँ, कोई भी चीज हो, क्योर इज इन द कॉज। जब कॉज नहीं समझ आएगा तो क्योर भी कभी ठीक नहीं होगा। आप सरफेस में आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जिम चले गए और आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने एक ही मील खा लिया जो मर्जी, ये सब जो अप्रोचेज हैं फिट्स एंड स्पर्ट्स में जो होती हैं, वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, और वो सॉल्यूशंस नहीं है। The reason why we are eating too much, we are unable to stick to our diet regimes, the way we are addicted to food, we have no dearth of knowledge, Dr. Reshma। knowledge जो है खाने पीने की, जो conventional थी, वो भी सबको है, और कुछ मिथ्स बहुत हैं। आई मीन रियली व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई आल्सो हैव टू एग्री दैट हमने इसको बहुत गलत एक पर्सपेक्टिव से देखा है, और उसी वजह से ये हमारा ये हाल है कि हम आए दिन डाइट बदलते हैं, अप्रोचेस बदलते हैं, और ब्लेम करते हैं अपने आप को भी कि हम नहीं कर पाए। तो ये जो वजह है, ये इसकी यही वजह है कि हमने इसको मोटापे को इक्वल कर दिया। अरे, हम फैट इक्वल्स फैट, जैसे हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से क्योंकि आपको डिपॉजिट्स दिखे आर्टरीज में, तो कोलेस्ट्रॉल और फैट आपका दुश्मन बन गया, चाहे वो मोटापा क्यों ना हो और हार्ट डिजीज। वो एक ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच है, और वो फ्लॉड अप्रोच है। और खास करके इंडिया में, क्योंकि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम फैट नहीं है, हमारी फैट की प्रॉब्लम के बजाय हमारी फैट की जो है वो इंसुलिन है। Our fat is insulin and over insulin resistance, too much insulin, and that really comes from not fats but carbohydrates. Too बिल्कुल। much of carbohydrates, whether it is refined carbohydrates through grains, maida, or sugars, or just cereals themselves, or just the packed bakery foods and the biscuits that we eat regularly. We stock it in our houses and serve it in our meetings. All those things, including the so-called healthy कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है साउंड में। जूस पीने आप। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही ईशी।
कुछ एक्चुअली see some टेक्निकल, हाँ ईशी आप ट्रैवल कर रही हैं शायद, कुछ I टेक्निकल hope प्रॉब्लम, सुन नहीं पाए आपकी थोड़ी बात सुन नहीं पाए, बताएं जरा दोबारा रिपीट कर दें। हाँ तो हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि हमारी प्रॉब्लम हमारा फैट इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट है, फैट नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। कार्बोहाइड्रेट हमारे खानों में कार्बोहाइड्रेट हमारे खानों में कहाँ से आ रहा है एक्सेसिव? एक तो जो शुगर्स हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा और वाइट राइस, ऊपर से उसके साथ साथ जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग खाते हैं, आमतौर पे घर पे बिस्किट्स मिलते ही मिलते हैं और दैट इज अ ऑफिशियल स्नैक। अगर कुछ नहीं मिला तो आप बिस्किट ले लेंगे। चाय खाली नहीं पियेंगे क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि भाई खाली पेट चाय नहीं पीनी, तो वो मतलब 2 बिस्किट तो खाने ही खाने हैं। तो वहाँ वो कुछ सोर्सेज से लेके एक्सेसिव इनटेक ऑफ जैसे शुगर्स थ्रू इवन फ्रूट जूसेस, टू मच ऑफ जैसे हमने बोल दिया जी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने तो आप फ्रूट जूसेस पी रहे हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक शुगर स्पाइक्स करता है। वो तो इनफैक्ट फ्रक्टोज इज इवन वर्स, so too much of fruit sugar is also a problem. So whether it is taking too much of anaj, too much of sugar, too much of bakery products, sweets, mithais and all of that, to all, so this is our real problem, and this is something which we all have misunderstood. इसका जो हमने अप्रोच करी ओबेसिटी मैनेजमेंट की, वो हमने फैट को कम करने की कोशिश करी, और जब भी हम फैट कम करेंगे खाने में तो क्या बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट से। दो फैट फूड लेके हमने ब्रेकफास्ट सीरियल्स शुरू कर दिए अपने, मतलब जो भी देखिए डब्बे लेके जा, म्यूसली, ग्रानोलाज, वो सब ग्रेन, और उसके साथ साथ हमने बहुत कुछ जूसेस हैं, गड़बड़ें करी हैं, और वो ही एकमात्र अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम काफी अपनी ओबेसिटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हल समझ सक पाएंगे, मतलब वी नहीं विल बी एबल। बिल्कुल, अच्छी आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई। और दुख दुख इस बात का है कि अमेरिका में, जहाँ यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ फार्मर्स मार्केट स्पेशल लगती हैं, दुगने तिगुने दामों पे हमें चीजें मिलती हैं, और इंडिया में सस्ते सुंदर और टिकाऊ खानों की कोई कमी नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है। डॉक्टर के कितनी बार कहते थे कि चावल चीनी मैदा, हमेशा कहते रहते थे कि हैव अ रेनबो इन ईच मील, यू नो ऑल ऑल दोस कॉमन सेंस की चीजें हैं। लेकिन वही जैसे आपने कहा कि कुछ वेस्ट को लेके बर्गर पिज्जा पे ज्यादा जोर हमारा हो गया। तो चलते आगे, ये बताइए कि इंडिया में ये देखा कि बच्चा होने के बाद ये पंजीरी और कुछ इस तरह के हम लोग खाने खिलाते हैं नई मदर्स को, जो कि कमर पर कभी कभी कहर ढाती हैं। तो उनके लिए कोई टिप्स बताएं, न्यू मदर्स के लिए। It's a very question which is not always asked. So I'm very happy that you have brought it out. तो एक्चुअली कहीं कई विमेन का तो बस वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि बस पहले तो हम 49 केजीज के थे, हम अंडर 50 थे, अब तो एक के बाद 60 हुआ, अब तो 70 हो गया, अब तो रुक ही नहीं रहा। मतलब विद द बेबीज द वेट जस्ट कंटिन्यूज टू गो अप नाउ। दिस टेक्स मी टू अ वेरी डिफरेंट sort of aspect of our life and reasons for obesity. Um, Post pregnancy, during pregnancy, let's say, there is a profound change in our digestive system, in our gut, जहाँ पे भी आपकी हार्मोनल अपहीवल होगा बॉडी में, चाहे वो पीरियड क्यों ना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो पेरीमेनोपॉज, चाहे मेनोपॉज, इस जब भी हार्मोनल अपहीवल होगा तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब स्पेसिफिकली गट जो है वो बिगड़ती है। और ये हमारे एंसेस्टर्स को खूब शायद पता था, जो मॉडर्न साइंस ने उसको नहीं समझा। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे, हम अपने आप को बहुत साइंटिफिक मानते थे। एज आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन दैट सिचुएशन, व्हाई इज माय मदर इन लॉ फसिंग ओवर मी सो मच that I have to eat this and I have to eat that panjiri and I have to do, and she used to say a lot of things which I used to find completely non-scientific. आज बेटा अभी नहीं करोगे तो आगे जाके तुम्हें दर्दें होंगी, तुम्हें तकलीफें होंगी, बोलती थी वो। और वो मुझे लगता था इट वाज सो स्टूपिड, बट टुडे I understand what she meant and why she said it, why probably she also didn't know
but that is what culturally we knew, that the gut needed healing. The gut was disturbed. According to modern research, that the third trimester, the gut in the third trimester is as bad as an IBD patient. ओहो, इतनी लीकी होती है। तो उसके बाद उसको जो 40 डेज वो जो हीलिंग करते हैं, ये नहीं हल्का खाना खाना है और ऐसे खाना है। अब ये जो है वो क्या दे रहे थे और अब क्या देना चाहिए, maybe there is a little difference in that, because like I said, lot has changed. Food sensitivities, food allergies have come up with the leaky gut. But gut healing उनका, आप ये याद करिए कि जो एक पानी बना के दिया जाता था, डाइजेस्टिव वाटर, प्लेन पानी दिया ही नहीं जाता था, ठंडा पानी मना करते थे, क्योंकि वो हाजमे के अगेंस्ट हैं ये चीजें। टू मच ऑफ कोल्ड एंड प्लेन वाटर के बजाय दे गेव सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, अजवाइन जीरे, का पानी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब इलायची डाल के पानी वो ही पीना पड़ता था, क्योंकि वो क्लेंजिंग करता था, वो डाइजेस्टिव सपोर्ट करता था। और अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो अगर गैसेस वगैरह होंगी तो वो इवन लैक्टेशन में फर्क पड़ेगा, बेबी पर भी वो कॉलिक वगैरह करेगा। सो इट मेड सो मच सेंस। However, so the ghee and the fats were needed to line the gut and to regenerate the gut. The gond is nothing but like a collagen, like gum, which is again doing the same thing. It's healing the leaky gut, but we probably didn't get it, and now I understand the whole science around it. But having said that, जो अनाज है, मुझे लगता है कि वो हमारी जो मॉडर्न वीट है वो इम्यूनोजेनिक है, और जब गट लीकी है और आप वो वीट खाएंगे उस समय, दैट कैन सेट द स्टेज फॉर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स एंड excessive inflammation, and therefore resistance to weight loss, and also you're not being able to, I mean, that depression, the postpartum issues, that we now are able to link with the wrong kind of food, which maybe we need the fat, maybe we need the good fats and the all the various seeds, etc. But we don't need that much of sugar, we don't need that much of grain. So I always say have a grain free panjiri. You can make it with besan, you can, and राइट, get the same benefit. And राइट, राइट। don't do that, then there, you get onto the whole issue of gut health and obesity, which is huge. बिल्कुल, वो थोड़ा क्योंकि हमने लेट भी शुरू किया तो हमारा वक़्त भी अंत में पहुँच रहा है। तो एक ये बताएँ कि अमेरिका में यहाँ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का इतना बोलबाला है, इतनी एड्स आती हैं टीवी पे कि घर बैठे-बिठाए रोज़ आपके खाने का टिफ़िन आपके पास पहुँचाएँगे, सही या गलत? कहना मुश्किल है। मैं कहती हूँ अगर आपने सपोर्ट के लिए किया तो ठीक है, लेकिन जब तक आपने अपने आप में देखो, डाइट का मतलब क्या है? इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। इट इज नॉट कि आपने आज ये नहीं खाया या वो नहीं खाया, उसको डाइट कहते हैं। डाइट इज समथिंग विच शुड बी अडॉप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है अपने लिए समझने के लिए कि क्या आपके लिए ठीक है, और आप किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो ठीक है, इफ इट वर्क्स फॉर यू वेरी वेल। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी रियल कि आगे जाके क्या होगा। जब अब मैं ये नहीं करूंगा, आपको समझना तो पड़ेगा कि आपको कैसे खाना है आगे जाके। So without that, it is not going to be okay. It's like going to a spa. For those 1 week, 10 days, 2 weeks, or a month, you are in a different environment, given the food, and you do very well. You come back, and if you have not learned how to eat, then 100% it's going to come right back. And but what I always say is I don't want to be critical about these things. I also feel that somewhere these things help you to um, believe that you can do it. हाँ, कि कि मैंने उसमें उस समय ये छोड़ दिया तो मुझे ये लगा, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये मैं तो चाय छोड़ ही नहीं सकती थी, वहां जाके तो मैंने छोड़ दी। सो दैट इज दोज आर लिटिल थिंग्स व्हिच हैव वैल्यू। So I don't particularly, so I mean, but I really feel one needs to get to the bottom of why you are not losing weight. I have patients who are gymming, who are doing all the right things. वो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट की जो इक्वेशन हमने बनाई, वो इम्बैलेंस की, वो सबसे गलत चीज करी। बिल्कुल। और वो
Oh, because calories is not the measure of, food is so much more than calories. True. फूड के इतने aspects हैं, और अगर आपने अपनी जो बॉडी की जो वजह है नहीं समझी, तो आपको ये कैलोरी काउंटिंग कोई फायदा नहीं करेगी। मैं वो कैलोरीज में क्या खा रही हूँ, मैं कितना खा रही हूँ, कब खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, सो रियली व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ मच यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, सेम कैलोरीज ईटिंग at the second half of the day, you will have a different effect. I know people who have night shifts, वो खाना उनका वही था, लेकिन रात को खा रहे थे, दिन को सो रहे थे, 10 किलो एक साल में बढ़ जाता है। तो हमारे साइंस में ये था, अ कैलोरी इज अ कैलोरी, मॉर्निंग और इवनिंग। नो, इट्स फूड इज नॉट अबाउट न्यूट्रिएंट्स अलोन, फूड इज सो मच मोर, and we need to understand food in the right context. And here I think जहाँ पर एवरेज जो तरीके हैं, टूल्स हैं, आपको एक्सरसाइज करके या थोड़ा बहुत खाना कम करके या शुगर कम करके आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब कोई और वजह है। So food sensitivities, wheat sensitivity, dairy sensitivity are some of the underlying issues which go unrecognized. ये They जो are ये तो causing inflammation. हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी, So बीच में आवाज टूट basically रही थी। हाँ। ये जो हाँ, सो मैंने कहा ये जो फूड सेंसिटिविटीज का एरिया है, ये निग्लेक्टेड है। वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ व्हाई समबडी नीड्स टू स्ट्रगल विद वेट लॉस। वो क्यों नहीं हो रहा, इतना जिम जाके, इतनी खाना कम करके, तब भी आपका रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको टेस्टिंग कराओ। वीट छोड़ के देखो, आप नवरात्रि में जैसे छोड़ते हैं 9 दिन, आप 2 हफ्ते अपना अनाज बदल लो, तो ऐसे करके देखो आपको क्या क्या है, मतलब what are the issues, and then nutritional deficiencies also are important, जो एक राइट। अपने आप है, जैसे मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, और आपके विटामिन डी है। इनको भी आपको एड्रेस करना है एज अ पार्ट ऑफ योर अप्रोच टू मैनेजिंग योर वेट एंड योर वेस्ट। नहीं एंड नहीं, वेरी ट्रू। हाँ हाँ। तो या जो आप कह रही थी उससे मुझे याद आ रहा था कि वेस्ट में एक बहुत अच्छी चीज ये करते हैं, और जो सेंटेनेरियंस हैं, जो 5 ब्लू जोन्स हैं दुनिया में, जहाँ दुनिया के 100+ लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो एक ही बात सब कहते हैं कि हमारी लास्ट मील जो है वो अर्ली इवनिंग में हम खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। वेस्ट ये बहुत करता है, और हमारे इंडिया में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कई बार दुकान बंद करके वो लोग घर पे पहुंचते ही रात को 10 बजे हैं, 11-12 बजे भी खाना खा रहे हैं। सो प्रोबेबली लाइक यू सेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जरूरी। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, पता नहीं वजन नहीं घटता। तो आपने बहुत जरूरी बातें बताई। कुछ ये पानी को लेकर के भी बड़ी कंफ्यूजन, आयुर्वेद और वेस्टर्न वर्ल्ड में झगड़ा रहता है कि कितना पानी पीना है और कब पीना है, उसको थोड़ा सा क्लियर करें। एक्चुअली जो हमारी पुरानी बातें थी ना, वो अब हमको साइंस के थ्रू ही अब समझ आ रही हैं। बहुत लेट करी हमने, 1 साल 100 साल, पता नहीं कितने साल हमने उनको निग्लेक्ट किया और डिफाई भी किया, तो वो गलतियां करी हमने। पानी एवरेज जो है वो एक रफ वो है 30 ml पर kg बॉडी वेट, but it can change from individuals health and situations, weather, and other even personal requirements. So that is a ballpark figure. इसका ये है कि यूरिन का कलर आपका डार्क नहीं होना चाहिए, that is a good indicator that you are eating drinking enough. Secondly, कब पीना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जो मुझे दिखता है आजकल कि हमने निग्लेक्ट किया कि यू आर इन द यूएस, को ये देखते हो कि जहाँ पे भी, कहाँ कोई भी फूड जॉइंट हो, आपने ऑर्डर किया तो उसके साथ एक ड्रिंक ऑर्डर होता है, कोल्ड ड्रिंक। दैट इज टोटली अगेंस्ट आयुर्वेदा एंड डाइजेशन। वो ये मानते हैं कि खाने के साथ, एंड नॉट ओनली आयुर्वेदा, इफ यू लुक एट इवन जापानीज एंड चाइनीज, ठंडा पानी नहीं पीते, वो ग्रीन टी पीते हैं, है ना। तो वो ग्रीन टी या जैस्मिन टी जो भी है, तो बेसिकली खाने को पचाने के लिए अगर आपने मैक्सिमम डाइजेशन का बेनिफिट लेना है, तो आपको वार्म लिक्विड्स लेने चाहिए खाने के साथ, ठंडा नहीं लेना चाहिए, और अगर ठंडा ही लेना है तो खाली सिप्स लें, एंड डोंट हैव टू मच वाटर राइट बिफोर योर मील, एंड an hour after your meal have your proper intake of water.
So that is what I feel is better. And in my clinical experience also, I seem to be practicing this and feeling much getting better results. So and it's easy to do. और ये देखिए जो ठंडा ठंडा खाना मतलब जो लेते हैं ड्रिंक्स इतने बड़े बड़े सोडास बर्फ बर्फ डाल के, प्रॉब्लम्स तो हैं ऐसे, मतलब बहुत जल्दी शुरू हो गई है इन लोगों में. सो नहीं नहीं दीज तो आर हाँ हाँ। हम्म। एंड तो yeah, एक and फॉर्मूला I think hydration. आसान सा फॉर्मूला लोगों को ये बता दें कि एक पेग नीट वाटर पर केजी आपने पीना है, राइट? जो मेरे को फॉर्मूला समझ आया आपका, 30 ml पर केजी, मैं कहूंगी एक नीट वाटर का पेग पर केजी बॉडी वेट आप याद रखें। और पानी ठंडा ना पिए। और अमेरिका में यहाँ पे तो बिल्कुल सही आपने बताया, कॉम्बो मील्स मिलती हैं कि आपको 50 पैसे ही एक्स्ट्रा डाल के ना $5 की बड़ी बर्फ भर के ड्रिंक मिलेगी। तो वो स्टीरियोटाइप भी गलत सा है ना, आपको मोटे लोग ही दिखेंगे वो जो ये सब काम कर रहे हैं। और आपने एक ये भी बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जो मैंने भी अपनी जिंदगी में देखी कि एक तो बैलगाड़ी की तरह से मेरा वजन था और अब बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ता गया। वो 40 किलो से पहले ऊपर नहीं जाता था, तब वो साइज 0 फैशन में नहीं था। तो अब मजाक बनता था, और अब बहुत कोशिश करने के बाद में तो उन दिनों बढ़ता नहीं था। तो जो पतले दुबले लोग हैं उनके लिए क्या फॉर्मूला है वेट गेन करने का? वेट गेन की भी अगर हमको वजह समझ आए क्यों नहीं वेट, एक तो अगर वेट आपके जेनेटिकली आपकी लीन जीन्स हैं तो आप खाइए पिए, आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ऐसे लोगों को गलत नहीं खाना चाहिए. मेरा वेट नहीं बढ़ता तो मैं जंक खा लूं, मैं सब कुछ गलत खा लूं, वो नहीं होना चाहिए. लेकिन उसका वी कांट डू वेरी मच एंड वी नीड नॉट डू वेरी मच इफ द इंडिविजुअल इज energetic and generally fit and healthy. If he's lean, it's fine. But if you are lean because of malabsorption or other reasons, you need to get to the bottom of it and do food sensitivity tests, do a test for absorption for celiac disease, and get to the underlying cause and then address it. That's the only thing. But वो बहुत ज़्यादा proteins ले लेके और वो गलत चीजें लेके बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइडल आर्टिफिशियल गेन करेंगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट शुड नॉट बी डन. राइट। तो अब आखिर में, क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं अपने सब क्लाइंट्स को बताती हूँ ये जरूर कि भाई स्ट्रेस और हमारे वेट का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये भी देखती हूँ मैं कि परेशान लोग अक्सर मीठे कंफर्ट फूड्स ढूंढते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सही कहा. और आजकल तो एक कंफर्ट फूड तो देखो, दो वंस व्हिच इंक्रीज योर सेरोटोनिन लेवल्स एटसेट्रा, बट वी नो शुगर हैज दैट effect on us, and several other amino acids etc are known to do that. Chocolates हैं, ये चीजें हैं कि एक नया एक वो हमारी बॉडी साइंस में एक सिस्टम हमने एक तो न्यूरोलॉजी जो होती है, एक तो पूरा नर्वस सिस्टम है, एक एंडो कैनाबिनॉइड सिस्टम आइडेंटिफाई हुआ है. और ये जो है ये भी एक किस्म से हमें एक कंफर्ट और प्लेजर का एक सेंटर है. सो द फूड टू sort of satisfy this endocannabinoid system, it has what we call the opioid centers also. So कुछ फूड्स में भी ऐसी चीजें पाई गई हैं which have the same effect. एक तो पता ही है हमें, शुगर का तो पता ही है. अब ग्लूटेन में एक ग्लूटियोमॉर्फिन आइडेंटिफाई हुई है. वन ऑफ द प्रोटीन्स इज कॉल्ड ग्लूटियोमॉर्फिन. इसी तरह मिल्क में केसियोपिन करके एक अमाइनो एसिड है which is having the same effect. तो कई लोग कहते हैं I can't leave my glass of milk, I am addicted to it, I can't leave my one chapati, that I can't leave because it is. So you have brought out a very big conversation area which we won't be able to do justice to. But this, why we, despite having the knowledge, are not being able to stick to our regimes is because we are eating the foods which are addictive. And some of these addictions are inflammatory. जैसे हमने बताया आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, तो ये इन्फ्लेमेशन करके माइंड को भी इफेक्ट कर रहा है और आप नहीं छोड़ सकते. इट लिटरली, एंड आई हैव टू गिव यू एग्जांपल्स for this. I'm just moving away from your primary question, but it just takes me to this. So if you remove gluten in a person's diet, or
वो फिर वो गलती से कभी खाएं, चाहे कैसे, तो वो जो इफेक्ट होता है, some of my patients have actually said we felt drunk, or it had that kind of effect. And this particular case was in office, and he said, my colleagues asked me कि तुमने दिन में कैसे पी है, क्या, what is wrong with you, whether it is it's causing brain fog, it is causing many other effects on your brain. So आई आस्क्ड देम, और आपको क्या हुआ, आपको क्रेविंग हुई? हाँ, पूरा इसके जब हमने खाया तो हमें क्रेविंग्स शुरू हो गई वापस, जो हमारी खत्म हो गई थी, जो हमारी एपेटाइट है वो बढ़ गई है, हमारी नींद में फर्क आया है, हमको मूड बदल गया है, वी डोंट वांट टू डू द डाइट एनी मोर, द मोटिवेशन हैज गॉन, so it has a drug like effect. So these are very new areas of research, but they are real and they need to be understood for us to really win the war on this battle of the bulge, I call. And we just so comfort, coming back to your question on these, this is one of the reasons why we need to sort of satisfy this endocannabinoid system. So the things that we get comfort from should be also taken, but जैसे कैफीन है, तो कैफीन आपने थोड़ी सी चाय कॉफी ले ली तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो गेट टू नो, चॉकलेट ले लिया, नो प्रॉब्लम, ऐसे करके और भी प्रोटीन्स हैं विच आर गुड एंड गिव यू द सेम काइंड ऑफ effect. You take an egg in the morning, you feel very good, and your cravings and your hormones and neurotransmitters remain very well balanced. So there is a lot of, so obesity, weight and waste, ये सारे हार्मोन हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, the number of issues we need to deal with to crack it are very, very complex. I mean, but it's not, the action is not complex. What you need to do is very simple. But there are plenty of things today which we understand, which we didn't understand earlier. So going back to making a one liner that you are what you eat, and you are what you digest. So वेरी that गुड। is अच्छा, very, very अच्छा important. स्लोगन आपने दिया कि यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। एंड डाइजेशन और वेट कंट्रोल का सीधा सीधा नाता हमारी सोच से और हमारे इमोशन से है। तो कम से कम इतना ही कर लें, कोविड काल में जो है इम्यूनिटी बूस्टर एक ही है, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल। तो ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, स्लीप, रिलेशनशिप्स, पॉजिटिविटी, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू मिस ईशी फॉर जॉइनिंग अस टुडे।